My name is Mike Wilson. I am the assigned engineer for your case. My extension number is 1001. I can see you. Yeah, you're wearing a gray shirt right now. You're wearing a gray shirt, right? Your name is Gaurav Trivedi. You're wearing a gray shirt right now. Why are you hiding? Why are you hiding, Gaurav? Why are you turning the... ये है रायबरेली के गौरव द्विवेदी जो एक अंग्रेज को ठगने चले थे। अंग्रेज ने गौरव को लैपटॉप को हैक कर लिया और उनके लैपटॉप के कैमरे से उनकी लाइव वीडियो बनाई और उनके घर के लाइव फोटो निकालकर रायबरेली पुलिस को सूचित किया। अब रायबरेली पुलिस गौरव द्विवेदी को तलाश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप देख रहे हैं रायबरेली न्यूज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खबर जो न सिर्फ हमारे शहर रायबरेली को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी एक साइबर ठग की है जो हमारे शहर से माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर लोगों को लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जो हुआ उसके बाद वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए पहले ये वीडियो। ये है गौरव द्विवेदी। My name is Mike Wilson. I am the assigned engineer for your case. My extension number is 1001 and your case ID number is WO1002. And you no need to write it down. I will save all these informations in your machine and you will be getting all the legal paperwork and receipt of the services on your email address once the work will get done, okay? Here's the problem comes around. These all are the intruders. These all are the bad peoples who are established in your network from different countries all over the world. And this is not a virus problem. They all are the human beings, just like you and me. Might be you have clicked on any type of fake advertisement. Might be you have visited any fake website and you allowed them to come into your network to steal your information, knowingly or unknowingly. So we have to block all those intruders as soon as possible to protect you from all these kinds of cyber attacks, okay? Now I will not waste too much time here. Quickly I will go ahead and make a report so that we will start the work as soon as possible, alright? Here we go. And before I proceed, Ryan, I will tell you one thing. This is a cyber attack. Hackers are connected, so there will be charges applicable, okay? I'm saying that as this is a cyber attack, intruders are connected, so there will be charges applicable, okay? देखिए ये वीडियो। ये है गौरव द्विवेदी का शॉक रिएक्शन जब उसे पता चला कि वो खुद हैक हो गया है। I can see you. Yeah, you're wearing a gray shirt right now. You're wearing a gray shirt, right? Your name is Gaurav Trivedi. You're wearing a gray shirt right now. Why are you hiding? Why are you hiding, Gaurav? Why are you turning the camera around? Gaurav, look, that's you, right? That's you, right? That's you on the photo. What are you doing? What are you doing to the computer? What are you doing? घटना तब हुई जब एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नैनोबाइटर ने द्विवेदी के लैपटॉप को हैक कर उसकी हैरान प्रक्रिया को वेबकैम पर कैप्चर कर लिया। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ 2 दिनों में 80 लाख से ज्यादा बार देखा गया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ हमारे अपने शहर रायबरेली में हुआ। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये स्कैम काम कैसे करता था। गौरव द्विवेदी रायबरेली के अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से एक क्लासिक माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट स्कीम चला रहा था। ये शुरू होता था एक फेक पॉपअप से जो आपकी स्क्रीन को लॉक कर देता था और तेज आवाज में वार्निंग साउंड बजाता था और बताता था कि तुरंत माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करें वरना आपका सारा डेटा खत्म हो जाएगा। Please call support immediately and do not shut down or restart your computer because it will spread the viruses more and all of your data will be deleted. Microsoft Security Alert. Your window is blocked. अब यहाँ चला कि ये भी थी कि पॉपअप में जो नंबर दिया जाता था वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं बल्कि गौरव का ही नंबर था। जब लोग घबराकर कॉल करते थे तो गौरव खुद को माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय बताता था। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि ये ठगी की कैसे जाती थी। पहले जो विक्टिम को एनीडेस्क या टीम वीवर इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता था। स्टेप 2 में जो है रिमोट एक्सेस मिलने के बाद फेक वायरस स्कैम दिखाया जाता था और तीसरे स्टेप में फिर महंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या क्लीनिंग सर्विस के नाम पर हजारों रुपए मांगे जाते थे और चौथा जो स्टेप था उसमें बैंकिंग डिटेल एक्सेस करके और भी पैसे चुराए जाते थे।
और दोस्तों ये सिर्फ कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, ये पहले भी 2023 में स्कैमर इंफॉर्मेशन फोरम पर रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन तब तक ये ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन दोस्तों अब आती है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। नैनो बैटर जो एक्स पर स्कैमर बैटिंग के लिए फेमस है, उसने गौरव को उसी के जाल में फंसाने का फैसला किया। नैनो बैटर ने एक वर्चुअल मशीन का उपयोग करके गौरव को रिवर्स हैक किया और उसके द्वारा वेबकैम फीड को कैप्चर किया, उसके चेहरे की क्लियर फोटो ली। उन्होंने गौरव के लैपटॉप के वाईफाई कार्ड का उपयोग करके उसकी लोकेशन को ट्रेस किया, जो रायबरेली के एक अपार्टमेंट तक पहुंची। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब नैनो बैटर ने गौरव के वेबकैम के थ्रू सबसे डायरेक्ट बात की, और दोस्तों गौरव का रिएक्शन देखकर लगा जैसे उसके होश उड़ गए हों। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। Can see you. Yeah, you're wearing a gray shirt right now. You're wearing a gray shirt, right? Your name is Gaurav Trivedi. You're wearing a gray shirt right now. Why are you hiding? Why are you hiding, Gaurav? Why are you turning the camera around? Gaurav, look, that's you, right? That's you, right? That's you on the photo. What are you doing? What are you doing to the computer? What are you doing? मेरा फोन ले ले। माइकल मम्मी तब गाँव है जब इंसान शांति से रहा करे, हर चीज करा करे। पता नहीं कहाँ हमारा करती खाना ये फोन मेरे नहीं दे। दोस्तों नैनो बैटर ने जो थ्रेड एक्स पर पोस्ट किया, वायरल होते होते 80 लाख व्यू पार कर गया। उन्होंने रायबरेली पुलिस को भी टैग किया और कार्रवाई की मांग की। और यहाँ मैं रायबरेली का रहने वाला होने के नाते बताता हूँ कि हमारी पुलिस की रिस्पॉन्स भी काफी क्विक थी। इस शॉकिंग खुलासे के बाद पुलिस एक्शन भी शुरू हो गया। दोस्तों रायबरेली पुलिस ने इस मामले का तुरंत संज्ञान लिया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के प्रभारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि गौरव को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ किया है कि वो कभी भी अनसोशलाइज्ड कॉल या ईमेल नहीं करते हैं। कंपनी ने लोगों से कहा कि वो टेक सपोर्ट स्कैम से बचने के लिए सतर्क रहें। दोस्तों अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं कि इस तरह से स्कैम से कैसे बचा जाए। पॉपअप पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपकी स्क्रीन पर कोई पॉपअप आए तो वायरस या हैक की वार्निंग दे रहा है तो तुरंत उसे क्लोज करें, कोई भी फोन नंबर या कॉल न करें। टिप नंबर 2 यह है कि रिमोट एक्सेस कभी भी मत दीजिए। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस देने से बचें, चाहे वो कितना भी जेन्युइन हो। और अगली टिप्स ये है कि ऑफिशियल चैनल का उपयोग करें। अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कनेक्ट करें। चौथी है कि रिपोर्ट करें। अगर आपको लगे ये कोई स्कैम है तो तुरंत cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करें या लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराइए। दोस्तों मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। ये जानकर दुख हुआ कि हमारे शहर से इस तरह का साइबर क्राइम हो रहा था, लेकिन साथ ही ये भी गर्व की बात है कि हमारी लोकल पुलिस ने इतनी जल्दी एक्शन लिया। हमारे रायबरेली में खासकर जो बुजुर्ग सिटीजन हैं को इस तरह के स्कैम के बारे में अवेयर करना जरूरी है। अक्सर हमारे बुजुर्ग टेक्नोलॉजी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और ये स्कैमर उसी का फायदा उठा लेते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट स्कैम एक बड़ी समस्या है जिससे स्कैमर लोगों को कन्विंस करते हैं उनके डिवाइस में प्रॉब्लम है, जबकि कोई समस्या होती ही नहीं है। नैनो बैटर जैसे साइबर जो विजिलेंस हैं पहले भी दिल्ली के स्कैम कॉल सेंटर को एक्सपोज कर चुके हैं। ये दिखाता है कि साइबर क्राइम एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन गया है और हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। दोस्तों इस पूरी घटना से हमें कई सबक मिलते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी एक डबल एज स्वॉर्ड है। इसका गलत उपयोग करके लोग फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन सही उपयोग करके भविष्य को भी सुरक्षित बनाया जा सकता है और पैसे भी कमाए जा सकते हैं। कम्युनिटी विजिलेंस की जरूरत है। नैनो बैटर जैसे लोग दिखाते हैं कि अगर हम चाहें तो साइबर क्रिमिनल्स को एक्सपोज भी कर सकते हैं। और पुलिस का कोऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइबर पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स सराहनीय रहा और इन मामलों में अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम एजुकेटेड हैं तो कोई हमें स्कैम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करें ताकि और भी लोग इस तरह के स्कैम से बच सकें। रायबरेली न्यूज को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा शहर और आसपास की हर इम्पोर्टेंट खबरों को लेकर आता हूँ। कमेंट में बताइए कि क्या आपके साथ भी कभी इसी तरह से कोई स्कैम अटेम्प्ट हुआ है। आपके क्या विचार हैं इस पूरे मामले पर, कमेंट्स जरूर कीजिए। मैं हूं ऋषि कुमार, रायबरेली न्यूज के साथ। याद रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये स्कैमर आपके पास कहीं रहता है तो रायबरेली पुलिस को जरूर सूचित करें। धन्यवाद आपका।